Ladies and gentlemen, esteemed guests, and participants from our incredible nation, India, a warm and resounding welcome to the inaugural session of our groundbreaking webinar series, that is 24 in 2024 series by Verve in association with Deltron Technologies Private Limited. So here, I'm Isha, and it's my absolute pleasure to be your host today. Today marks the beginning of a journey that spans 24 webinars throughout the year, each dedicated to close the gap between what we learned in classrooms and demands of the dynamic professional realm. Our webinar series aim to do just that, to create a space where the brightest minds in education converge with the thought leaders of the corporate world, share insights, best practices, and shaping the future workforce. This series is not just about the knowledge transfer, it is about building a bridge, forging connections, and cultivating a community where an academia and industry can collaborate harmoniously. So, whether you are a student with aspirations, an educator shaping minds, or a professional seeking to stay ahead in your field, you are an integral part of this journey. Your active participation, questions, and insights will enrich the dialogue and contribute to the collective wisdom we aim to build. So, our first speaker is not just a leader in their field, they are a visionary, an innovator, and a catalyst for a change. Today, we are especially fortunate to have a thought leader, Mr. Anupam Anand sir, who is an authority in our series theme about strategies for a successful career, do's, don'ts, and more. So, Mr. Anupam Anand sir, he is the CEO and the co-founder of a well-established IT solutions and digital marketing company. Sir, your presence here today is a beacon of inspiration for all of us. We eagerly await your insights, wisdom, and valuable perspectives you bring to the table. As the first speaker of our 24 webinar series, you set the foundation for a year of a learning, collaboration, and growth. So, my dear audience, without further ado, I would like to invite Mr. Anupam Anand sir to take the virtual stage and share their thoughts on the crucial theme of uniting education and corporate excellence. Ladies and gentlemen, let's give a warm digital welcome to Mr. Anupam Anand sir. Thank you so much, Isha. Thank you for such a warm and delightful welcome message. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. A bright good morning to all of my wonderful audience members. I'm Anupam Anand, the CEO and co-founder of Deltron Technologies and Whiteboard Education and Research Foundation. So basically, we are embarking on our first webinar of the series 24 in 24. This is a concept where we are launching total 24 top-notch industry experts who will be talking, who will be sharing their experience, who will be sharing their knowledge to the audience who will be joining this webinar series. Basically, the concept is connecting the dots, connecting the education with corporate. And today, this is the first webinar that I'm going to host. The topic could be successful career tips. We will also dive into career guidance. We'll share some handy tips and tricks, concluding with a session of questions, answers, and discussions. Hopefully, we will be covering the entire session in approx 60 to 90 minutes. Last 30 minutes would be the question and answer sessions. If you guys will be having any kind of questions that you want to ask, maybe Isha or Shivangi will be the one who will be taking your questions and asking me. So we will be able to answer all your questions. Once again, I appreciate your valuable time and presence. Let's start. So let me just share my screen so it will be better for everyone to understand. Just allow me a moment. All right, Isha, is it visible to everyone? Yes, sir. It is visible. Okay. All right, so this is my normal introduction. This is Anupam Anand, CEO and co-founder, Deltron Technologies Private Limited. Currently, I'm running total 6 companies. The first company that I talk about is Deltron Technologies Private Limited. This is situated in Noida 135.
The second company is EcoSilentix Solutions Private Limited, again in Noida. Color Pixel Technologies Private Limited. The three company I have in US based in Chicago, Illinois. The first is Inceptra Solutions LLC, which deals into the US IT solutions. The second one is the HomeWatch Caregivers, जो डील करती है इन हाउस केयर सर्विसेज में. द थर्ड वन इज द क्लीनिंग अथॉरिटी फॉर home cleaning services in Chicago market. Moving to the next slide, this is my achievement in 2023. There is a magazine known Trade Flock. It's a business magazine. उन्होंने मुझे feature किया था in 40 under 40. So I was really blessed to count it under this 40 under 40. बहुत अच्छे like co-founder of Urban Company, co-founder of Ola, co-founder of Mama Earth. I was counted under the vision and under the 40 under 40 by Trade Flock. This is a normal introduction and this is a normal interview that they have taken. Trade Flock has taken from me. So this was just my achievement in 2023. Moving towards the next slide, this is introducing Whiteboard Education and Research Foundation. Let me take 2 to 3 minutes to explain about Whiteboard Education and Research Foundation. And I really want everyone to understand about the entire concept behind it. This is really useful for the youth generation of India. Whiteboard Education and Research Foundation is an NGO under which we are not taking any amount from any attendees. Free of cost, we are providing the complete career guidance, technical knowledge. We are connecting the dots. Our main mission is हम एक गांव के बैठे हुए स्टूडेंट को भी यूएस कनाडा के बैठे हुए स्टूडेंट या फिर sitting on the position of director, any solution architect who are sitting on the level of any higher position. So we are just trying to connecting the dots. Basically, education. Basically, आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि they are having any kind of course like BBA, BCA, MBA. बहुत से professional course हैं जो वो opt कर रहे हैं. But they are lacking with the practical knowledge. They are lacking with the guidance basically कि उनको किस direction में जाना है, what kind of course that they need to learn at this point of time. Artificial intelligence, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है कि artificial intelligence अभी करना है, this is the trend. But people actually don't know about it. What is artificial intelligence? क्या करना है artificial intelligence में? What are the basic needs for artificial intelligence? क्या 5 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में है? क्या 5 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में इतनी डिमांड रहेगी? So these kind of general questions, you will be getting the direct answers from the industry experts. So basically a person who is sitting in Google, a person who is sitting in Microsoft, Wipro, IBM, any big giants, any big company. So I'm giving a platform where youth generation of India वो कहीं पे भी ये वेबिनार के थ्रू इस सीरीज के थ्रू यू विल बी टॉकिंग विद द एक्सपर्ट यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दे विल बी आंसरिंग यू so we are trying to cover everything under one platform, that is Whiteboard Education and Research Foundation, under which in collaboration with Deltron Technologies we have launched this entire session 24 in 24. This is all about the 24 in 24 session, the change makers of India. Now you can see here the 24 experts who will be sharing their experience, who will be sharing their knowledge about the industry, about the knowledge, about the product, about the requirement that you will be having in coming time. If you see the names, Deepak Jha, Aditya Pathak, Nitin Pal, Pankaj Singh, Manoj Matai, they all are sitting on a very good position. Management consultant in Accenture, Chief Operating Officer, Binary Informatics. Nitin Pal is from IIM Calcutta. Chitranjan is CPU Logics IBM. So these are the type of experts. They are on our panel. They will be talking to you directly. They will be sharing their experience. And definitely you will be having the opportunity to ask questions regarding your entire subject. So we are covering the different core subjects in 24 sessions. हमने बहुत अलग-अलग topics को target किया है. We are trying to cover the management like recruitment, operations, HR process. In technical, we are trying to cover artificial intelligence, cyber security, software,
stock market. So these are the kind of topic that we are launching for this entire year. हर महीने में 2 वेबिनार है. Every second weeks we are having one webinar. So that is completely free of cost. You or any of your known who want to take advantage of from this webinar, they are free to join. They can definitely join. We will be sharing the link. So this is today's agenda that we're going to talk. It's 11:15 already, and we will try to cover the entire webinar session in just 1 hour. So today's agenda is strategies for successful career. आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है जिसपे इट्स अ जनरल, इट्स अ कॉमन टॉपिक दैट वी गोना टॉक अबाउट इज strategies for successful career. If you will be having any question, I guess Shivangi or Isha, they are having the right to ask questions through chat, right? Yes, sir. Okay, so Right, sir. okay, so audience, you can type your questions if you have anything to ask, and end of the session we will be discussing about the questions that you have. So today's agenda is strategies for successful career. When we talk about successful career, first question is what is career that we need to talk. What is career? Career होता क्या है? बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद व्हेन वी स्टार्ट स्कूलिंग, हम स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल के टाइम से ही एक वर्ड हम सुनते आ रहे होते हैं हमेशा के लिए कि बेटा सही से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा करियर बनेगा, बड़े होके अच्छा बनोगे. बहुत ये वर्ड बहुत कॉमन होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे होते हैं, बट एट द एज ऑफ 20, 25, 30 इवन हम इस वर्ड को सही से समझ नहीं पाते हैं कि करियर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली करियर. सो बेसिकली हमें ये समझना होता है कि करियर क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि उस करियर को हम कैसे डिसाइड करें. व्हाट आर द बेसिक प्रो एंड कॉन्स, व्हाट आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स. क्या चीजें हैं जिसको करके हमारा करियर अच्छा हो सकता है, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज करियर, करियर इज बेसिकली अ पर्सन्स प्रोग्रेस थ्रू हिज और हर लाइफ. ये नहीं है कि आप बड़े होके सिर्फ और सिर्फ एक सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए एंड आपका करियर बहुत अच्छा हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड इफ अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई मीन जिसने 12th नहीं किया, ड्रॉप आउट्स है, वो 12th से नीचे ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी एंड आज के टाइम पे ही इज अ बिजनेसमैन, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस चला रहा है. व्हाट डू यू थिंक, उसके करियर अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है. उनके भी, वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में. सो बेसिकली दिस इज अ प्रोग्रेस. एक ग्राफ है, यू नीड टू इंक्रीज डे बाय डे. इफ यू आर इंक्रीजिंग, इफ यू आर हैविंग अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ एंड यू आर trying to achieve something and somewhere you are satisfied by that, that is your career. So career को समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चीजें ऐसी है जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे करने में मजा भी आ रहा है, और आई थिंक आई एम रियली गुड एट इट, मैं ये करने में बहुत अच्छा भी हूं. तो उस बेसिस पे यू कैन डिसाइड योर करियर. अ पर्सन्स प्रोग्रेस थ्रू हिज और हिज लाइफ. अ पर्सन्स करियर इज लाइक अ जर्नी थ्रू लर्निंग. ये चीजें हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? थ्रू लर्निंग, वर्क एंड लाइफ. सो लर्निंग, डेफिनेटली आप सीख क्या रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर क्या रहे हो, और जो आप सीख रहे हो और जो आप कर रहे हो उसका आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. सो दीज आर द कैलकुलेशन ऑन विच यू कैन डिसाइड योर करियर. ठीक है? वाई सेलेक्ट अ करियर. अब सवाल आता है कि करियर इज इंपॉर्टेंट, बट करियर इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई, क्यों सेलेक्ट करना है? द आंसर इज वी हैव बीन क्रिएटेड यूनिक. डेफिनेटली हर किसी की अपनी अलग आइडेंटिटी है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यस, डेफिनेटली आई एम यूनिक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट वी हैव ऑन दिस कॉल, यू ऑल आर यूनिक. आप सब यूनिक हो, हर कोई एक दूसरे से अलग है. एग्जाम्पल इज फिंगरप्रिंट. हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग हैं. आज के टाइम पे आधार कार्ड भी है, सबके आधार कार्ड इज डिफरेंट. वी आर बॉर्न वंस. हम एक बार ही पैदा हुए हैं. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 40 years on our work on an average. आज के टाइम पे आफ्टर 20 years, 25 years. Anupam sir, Yeah, can you hear me? Anupam sir, your voice is breaking. Hello?
Can you hear me? Just give me a moment. Hi guys, I think there is some network issues. Our guest will be joining soon. Just have patience. Okay, he's joining in a minute.
Hey audience, Isha this side. Actually, we are having some, network issue over here. So please hold on to the meeting. Okay. And in the meantime, like if you have any queries, like if you have any questions regarding to your career path, or how we can move further in a career with having a different sort of streams, you can put it into the chat box. We are just coming back. There is some network issue actually. So sorry for the inconvenience.
Hi guys, this is Indresh, and we are extremely very sorry. Actually, this problem is with the teams. So what happening? Like teams, like they are not allowing the attendees to join. I don't know what's the technical glitch going over there. So just allow a couple of more minutes. I'm so sorry for that.
Hello. Hello. Yeah. I'm so sorry, actually. This is an issue with the name. Okay. I can read. Isha said, yes, sir, you're audible. Okay. So sorry, guys. So sorry for disconnecting the call. Actually, it was internet issue, and I don't know. I was trying to reconnect all the time, and the request was, I mean, admin was getting the request, but she was not able to allow me in. I'm really sorry for that. So let's continue. I apologize for this mistake. Okay, let's continue. In case if any other problem will encounter, do let me know. Isha, please do let me know. Okay. All right. So I was, yeah, Indresh, you're saying something? Indresh, you're breaking. Indresh, we can't hear you. Can you please mute? We can't hear you. Okay, Indresh, please be on mute. Actually, we are not getting your proper voice, so it's breaking. I'm sorry. Shall we start? So, I think we are good to continue now. Okay. Thank you. Thank you, Indresh. Okay. So we were talking about why selecting a career. एक करियर को हमें क्यों जरूरत है, क्यों सेलेक्ट करने के लिए? So the question and the answer is here. We spend almost 40 years on our work. हम approx 40 years, 40 साल अपनी जिंदगी का हम approx काम पे देते हैं. On an average, approx 80,000 hours that we work, that we give, ourselves to the work. Now, ask yourself, how will you spend these 80,000 hours before you die? You need to plan कि आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी का ये 80,000 hours आपको कैसे देना है, क्या करना चाहते हो? विल यू गोइंग टू एंजॉय दिस? ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा करियर चूज कर लिया हो जो करके आप हर दूसरे दिन परेशान हो रहे हो और आपको लगे कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई आई हैव चूजन दिस करियर फॉर मी. सो वाई करियर डेवलपमेंट? इन चीज़ों के लिए जो है आज के टाइम पे करियर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है. क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है करियर को चूज करने के लिए? दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक आज के टाइम पे. मैं IIM, IIT कहीं की भी बात करूं, वी हैव द इनविटेशन फ्रॉम NIT कॉलेज इलाहाबाद एज वेल. वी आर गोइंग इन फैब फॉर द सेम सेमिनार. तो टॉपिक इज सेम, करियर गाइडेंस. सोचो कि एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द मार्केट, IIT, IIM, ये ऑलरेडी वो कवर कर चुके हैं, उसके बाद भी दे नीड करियर गाइडेंस. क्यों? क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो अभी भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं? एक्चुअली दे नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर. आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वी फॉलो द क्राउड. हम क्या कर रहे हैं, भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं. हम 2009 12th पास आउट. 2008 के टाइम पे IT मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था, सत्यम डाउन हो गई थी उस टाइम पे. लोगों ने उस टाइम पे एक हाइप बना दिया था मार्केट में कि IT में तो कोई करियर ही नहीं है, देयर इज नो करियर इन IT. कंप्यूटर साइंस लेना उस टाइम के लिए, क्यों ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस, ऐसी बातें हुआ करती थी. व्हेन वी टॉक अबाउट बीटेक एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टोरी 2009. तो ऐसा नहीं है. एक सिचुएशन को देख के और लोग क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर हम चलने लगे तो वी विल डेफिनेटली स्पॉइल आवर करियर. तो डोंट फॉलो द क्राउड. दुनिया जिस हिसाब से भाग रही है, दुनिया जो बोल रही है उसके पीछे मत जाइए आप. चूज बाय इन्फ्लुएंस बाय अदर्स. ठीक है? आप देखो मार्केट में डिमांड क्या है अभी, व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इन द मार्केट. उस डिमांड के अनुसार अपने आप को पहचानो. डू यू हैव द स्ट्रेंथ फॉर दैट डिमांड? आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा, दे आर जनरेटिंग रियली गुड नंबर ऑफ रेवेन्यू, प्रेस्टीज, अच्छा खासा इमेज है उनकी मार्केट में, बहुत बहुत
सेटल्ड करियर आई कुड से, कि वो उन चीज़ों में है जो आज से 10 साल पहले नहीं था। एक्सेप्ट आज के टाइम पे जनरेशन में क्या हो रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के कहने पे बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट लिसन योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की बातें सुनो, ज़रूर सुनो, बट रिसर्च, कई बार ऐसा होता है, दिस इज़ अ नॉर्मल टॉक, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे लाइक मी, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आज के मार्केट ट्रेंड के बारे में नहीं पता है। मे बी दे आर हैविंग लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा एक जनरेशन गैप कह लीजिए या कुछ भी कहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं है। बट आप आज के जनरेशन हो, यू नो द रियल डिमांड ऑफ द मार्केट, आपको पता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, एंड आज से भी ज़्यादा आने वाले 5 years 10 years में डिमांड क्या है। प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंग अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। द सेम आंसर इज देयर, गेट टेम्प्टेड बाय करंट ट्रेंड्स। अभी के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जिसकी डिमांड है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है हमें। जंप इनटू अनी करियर। अभी क्या चल रहे हैं स्टूडेंट, बहुत घबराहट में, और 12th किया, 10 लोगों ने 10 बातें बोली, बहुत सी चीजें की, दे इमीडिएटली जंप इनटू एनी करियर, वो किसी भी करियर में जंप कर जाते हैं। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो आज के टाइम पे स्टूडेंट कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, इतनी गलतियां हैं, इतनी चीजें हैं, सारी चीजें तो मैंने बता दी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर, सारी बातें तो सही हैं, बट हाउ टू चूज करियर। अगर मैं अभी 12th कर रहा हूँ, या अगर मैं अभी 10th कर रहा हूँ, या चलो मैंने अभी बीटेक की पढ़ाई कर रही, या आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए और मे बी एमबीए, हाउ टू चूज करियर। ठीक है, मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं 12th करने के बाद या मैं एमबीए कंप्लीट करने के बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इज रियली गुड फॉर मी। तो हाउ टू चूज, दिस इज अगेन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के साथ होता है, हाउ टू चूज। सो द आंसर इज, आई बिलीव आप में से बहुत से लोगों को सॉर्ट के बारे में पता होगा, राइट? सो देयर इज अ वर्ड SWOT, S known for strength, W known for weakness, O known for opportunity, T stands for threat. For choosing your goal, for choosing a good career, you must need to set a goal. आपको लाइफ में एक गोल डिसाइड करना होगा। यू नीड टू फाइनलाइज वन पाथ। अगर आप हो, मान लो सपोज एनी लोकेशन, इफ यू आर सिटिंग इन न्यू दिल्ली और आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है, तो यू हैव मल्टीपल गोल्स, मल्टीपल रास्ते, यू हैव मल्टीपल पाथ्स, राइट? आप कार से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, यू हैव द ऑप्शन टू चूज फ्लाइट, है ना? कई सारे ऑप्शंस हैं। बट जब ये सारे रास्ते आपके सामने होंगे, हर किसी के लिए हर रास्ता इज नॉट फीजिबल। हो सकता है कुछ पुअर लोग होंगे जो गरीब हैं, वो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब उनके पास दो ऑप्शन बचा, या तो वो बस लेंगे या फिर वो ट्रेन लेंगे। बस और ट्रेन में भी अब आपको डिसाइड करना है। सो बिफोर यू रीच समवेयर, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस। ऐसा नहीं कि 10 लोगों ने बोल दिया कि अरे भाई तू तो तुरंत पहुंच जाएगा अहमदाबाद, टेक अ फ्लाइट, और आप उसके पीछे भाग चले। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको पता चला, ओ यहाँ पहुंचने के बाद तो यहाँ पे तो बिना टिकट्स के तो एंट्री नहीं है, और जितने की टिकट है उतने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। सो एज अ रिजल्ट, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपने ऑलरेडी बहुत लंबा सफर तय कर लिया एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, एंड देन यू रियलाइज्ड कि यार यहां पहुंच के तो अब आई एम अनेबल टू टेक द फ्लाइट। सेम हैपेंस इन करियर। ऐसा ना हो कि आप बहुत लंबा सफर तय कर लो अपने गलत करियर के लिए। सो बिफोर यू स्टार्ट वॉकिंग, थिंक अबाउट इट। बिफोर यू चूज एनीथिंग एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट, थिंक अबाउट इट। ठीक है? सो दैट इज द रीजन यू नीड टू डू SWOT एनालिसिस, and this is not only for choosing your career, any time whenever you feel low or whenever you think कि मुझे कुछ डिसाइड करना है और आप कंफ्यूज हो रहे हो अपने लाइफ में कि मुझे करना तो है बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको करना है SWOT एनालिसिस। एंड व्हाट इज SWOT एनालिसिस? नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपने स्ट्रेंथ पता होने चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है। सपोज इफ यू आर अ गुड सिंगर और आप अपना करियर डांसिंग में बना रहे हो, ठीक है,
तो दिस इज अ रॉन्ग पॉइंट, आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हो. सो नो योर स्ट्रेंथ फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ फाइंड योर वीकनेस. आपकी कमजोरियां क्या हैं, किस चीजों को लेके आपको प्रॉब्लम होती है, क्या वो प्रॉब्लम्स, क्या वो वीकनेस आपको आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करेगी, आपका करियर बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. नो योर वीकनेस. आफ्टर दैट नो द अपॉर्चुनिटी, कि चलो जो भी आपने डिसाइड किया, क्या उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, इज देयर आर एनी अपॉर्चुनिटी दैट वी गोना वर्क, क्या उसका फायदा है आने वाले टाइम पे. एंड नो द थ्रेट्स, चलो अभी तो फायदा है, क्या 2 साल बाद 3 साल बाद उसका फायदा रहेगा. तो बहुत सी चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदल रहा है, टाइम टू टाइम बहुत सी चीजें. एक टाइम था जब C++ सीख के बच्चे बहुत अच्छा जॉब ले लिया करते थे. एक्सेल सीख के, आई एम गिविंग यू और थोड़ा सा एग्जांपल, एक्सेल सीख के बहुत अच्छी जॉब मिल जाया करती थी. आज के टाइम पे नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुका है. सो देयर आर सम टेक्नोलॉजी दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड टू वर्क अपॉन. उन चीजों के ऊपर यू नीड टू डिसाइड, एंड दैट इज व्हाई SWOT एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग अ गोल. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नो द मार्केट डिमांड. बिफोर यू चूज एनीथिंग, नो द मार्केट डिमांड. क्या है अभी मार्केट में. बहुत छोटे मोटे 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं. पॉडकास्ट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ करियर दैट पीपल आर मेकिंग टुडेज. फोटोग्राफी, ओह माय गॉड, पहले फोटोग्राफी में कुछ नहीं था, मतलब बहुत बहुत कम रेट में फोटोग्राफर्स मिल जाया करते थे. आज के टाइम पे you can't imagine how much people are charging for it. YouTuber, they are making a lot of money. Name, fame, everything. Artificial intelligence is in terms of technically if I talk about. Social media platform. Digital marketing is the currently trend. बहुत से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप इंडिया. अभी तो द गवर्नमेंट दैट यू हैव इज रियली हेल्पफुल, तो वो आपको स्टार्टअप के लिए भी काफ़ी इंकरेज कर रही है. सो नो द मार्केट डिमांड, उसके अकॉर्डिंग SWOT एनालिसिस करो, उसके अनुसार इफ यू वांट opt for the opportunity. Moving towards the next slide. Good career is important. Why? एक अच्छा करियर तो सबको चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? What are the basic reasons? So there are some points that I sorted out. So it's financial stability. If you have a good career, you will be having a good financial stability, definitely. पैसा हर किसी को चाहिए. At the end of the life, money matters. Personal fulfillment. आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट उससे पूरी होंगी. लाइक छोटी मोटी चीज़ें, लाइक आपको कार लेना है, आपको कोई और चीज़ें पूरी करनी है, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल बी फुलफिल्ड इफ यू हैव अ गुड करियर. क्वालिटी ऑफ लाइफ. हर किसी को आज के टाइम पे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए. अच्छी जिंदगी हर कोई जीना चाहता है. सो यू विल बी गेटिंग द सेम इफ यू हैव अ गुड करियर. करियर फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट इज करियर फ्लेक्सिबिलिटी? If you are good enough today, if you joined somewhere today as a job intern or maybe associate, any profile that you started working, maybe after 5 years, so let's count it after 10 years, 10 साल के बाद, do you have the flexibility to change something? ऐसा तो नहीं कि अभी जो स्टार्ट किया 10 साल बाद फिर से हम एक स्ट्रगलिंग फेज पे आ जाएंगे. सो इफ यू हैव अ गुड करियर टुडे, यू कैन प्लान फॉर इट. रिटायरमेंट प्लानिंग. चलो 60 साल की उम्र तक तो काम कर लिया. आज के टाइम पे 60 साल वैसे कोई करता नहीं है. It's 40, 45, max 50. Everyone is planning to retire. Generation has changed completely. So everyone is planning for maximum up to 50. So what are your retiring plannings? That can be done if you have a good career today. Networking and relationships. If you have a good career, you will make lot of networkings. आपके काफ़ी अच्छे connections बनेंगे. आपके relationships काफ़ी बढ़ेंगे. Professional identity and recognition. आपको सोसाइटी में, समाज में अच्छी इज्जत मिलेगी if you have a good career. So these are the basic points which allow you to decide, yes, you really need a good career. Some basic do's and don'ts for successful career. Successful career is important, but क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेट क्लियर गोल्स. नो योर पाथ, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नो योर पाथ. बिफोर यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, बिफोर यू स्टार्ट वॉकिंग, नो योर पाथ, कि किस पाथ पे आपको जाना है. कंटिन्यूअस लर्निंग. लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करना इस कंटिन्यूअस लर्निंग. नेटवर्किंग. मेक एज मच एज यू कैन. मेक मोर कनेक्शंस.
वर्क ऑन मोर कनेक्शंस, गो टू द इवेंट्स, कहीं पे कोई बिजनेस इवेंट्स हो रहा है, कहीं पे कोई जॉब फेयर लग रहा है, गो देयर, मेक कनेक्शंस, मीट पीपल. Communication, work on your communication. If you think you're really good at speaking, still work on it. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, स्टिल वर्क ऑन इट. जितना ज़्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, उतनी ज़्यादा आपको लाइफ में इससे फ़ायदा मिलने वाला है. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है, 12th कर लिया, 10th कर लिया, बीटेक कर ली, और उसके बाद बैठे हुए हैं आराम से करने के बाद कि ठीक है अभी 3 महीने की छुट्टी लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट लाइफ. नो योर टाइम. ठीक है, टाइम कभी किसी के लिए वेट नहीं करता. सो रहे हैं तो सो रहे हैं 10 घंटे तक, 12 घंटे तक. तो थिंक अबाउट इट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो एक्सक्यूजेस. इफ यू रियली वांट टू सक्सेसफुल इन योर करियर, नो एक्सक्यूजेस. एक्सेप्ट योर गलतियां. आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्सेप्ट करें. यस, दिस इज समथिंग, हाँ मेरी गलती है, आई विल मेक इट, इसको मैं फिर से ठीक कर लूंगा, आई विल मेक इट करेक्ट. ठीक है. नो एक्सक्यूजेस. ऐसा नहीं कि नहीं इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, उसने बोला था इसलिए हुआ. नो एक्सक्यूजेस. सीक फीडबैक्स. अगर किसी के सामने जा रहे हो, कोई लोग आपको कुछ भी फीडबैक दे रहा है, इन अ पॉजिटिव वे एक्सेप्ट इट. अगर कोई बोल रहा है कि आप तो पढ़ते नहीं हो, आप तो बेकार हो, या कोई भी चीज़ है, एनीथिंग डजंट मैटर, सीक फीडबैक्स. आप उसको अपने अंदर लीजिए, कोई बात नहीं. थिंक अबाउट इट. फिर उस पर सोचो क्या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इफ यस वर्क ऑन इट, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. मेक गुड एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स. आपकी जो संगति है, जिसमें आप बैठ रहे हो उठ रहे हो डेली बेसिस पे, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. अगर आपके आसपास सारे नेगेटिव लोग हैं तो वो आपको नेगेटिव ही कर देंगे. तो इसलिए आपकी जो संगति है, जो आपका ग्रुप है, वो पॉजिटिव होना चाहिए. डोंट्स में आपका सबसे पहला आता है नेगेटिव एटीट्यूड. कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स के अंदर, नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर. So they think they are the best. They don't want any kind of changes in their life. They don't want any kind of changes in their attitude. No, it's actually good. Be positive, stay positive, make positive. हर आपके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव करना आपका काम है. So remove your negative attitude from you. Resistance to change. बहुत से स्टूडेंट में ये है कि अरे मैं तो ऐसा ही बहुत अच्छा हूँ, मेरे को नहीं बदलना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. तो रेजिस्टेंस टू चेंज. इफ समवन इज सजेस्टिंग यू टू चेंज, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके अंदर ये है और आप इसको इंप्रूव कीजिए, एक्सेप्ट इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है. इग्नोरिंग फीडबैक्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई फीडबैक दे तो उसके ऊपर काम करना है. लैक ऑफ गोल सेटिंग्स. आपकी लाइफ में अगर गोल ही नहीं है और आपने जिंदगी के 35 साल निकाल दिए, you will be facing problem in coming time, definitely. Burning bridges means if someone is there who can help you to grow, anyone, this can be your mom, this can be your dad or your friend or anyone. So if someone is there to lift you up, accept it, respect it. आप उसकी रिस्पेक्ट करें. ठीक है, उसको हटाना नहीं है या उससे दूर नहीं हट जाना कि यार ये तो बेकार है, ज्ञान देता रहता है मुझे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. करियर गैप्स. अवॉइड टू मेनी करियर गैप्स विद एनी रीजंस. कई बार ऐसा होता है, हमने रिज्यूमे में देखा है कि स्टूडेंट के अंदर करियर गैप्स होते हैं बहुत ज़्यादा. 3-3 साल, 4-4 साल वो तैयारियां कर रहे होते हैं. ट्राई टू अवॉइड इट. वर्किंग विदाउट लर्निंग. कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली, कुछ सीख नहीं रहे हो, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे. 2 साल 3 साल आपके यूं ही निकलते जा रहे हैं जिंदगी के. सो वर्क ऑन इट. ठीक है, वर्किंग विदाउट लर्निंग. सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल करियर के लिए काम आएंगे. If you want, my team will share you the entire slide, and if you want, you can get in touch with us. We are here to support you. Reach us anytime. You can write down the email address support@whiteboardfoundation.in, contact@deltrontnp.com, hr@deltrontechnologies.com. You can also drop WhatsApp message to us on all 3 numbers. We are here to support you. We are here to guide you anytime. So आपको कभी भी लगता है इट्स नॉट अबाउट ओनली करियर, इट्स ऑल अबाउट, अभी हमारे नेक्स्ट 23 सेशंस जो हैं दैट वी आर हैविंग ऑन टेक्निकल. सो HR फील्ड में है, टेक्निकल है, करियर गाइडेंस है, रिज्यूमे मेकिंग पे है, इंटरव्यू क्रैकिंग पे है, बहुत सारे सीरीज हैं अभी. सो सेव दिस ईमेल, सेव दिस नंबर.
You can ask HR, you can ask our teammates to share you the link. If you think आपके कोई friends हैं, relatives हैं जिनको इस type के seminar या webinar से फायदा हो रहा है, definitely you can share the link. Now we are moving towards the next slide. That is, thank you for joining us today. And now we will start question and answer session. I request Isha or maybe Shivangi, you can take questions from the audience. And if they have any question, if they want to ask anything, we are here to answer. So if anyone is having any question, you can write on the chat link. You can type your question there and I will try to answer. In next 15 minutes, we will try to wrap it up. Question from Shivangi. Shivangi, Yes, sir. Yes, sir. hi. So I have a I question. have a question. Mhm. If I, want to make my career in digital marketing, Mhm. so what are the skill sets do I require to pursue that? that? And what is the Okay. future of digital marketing? All right. So जो मैं समझ पाया आपकी क्वेश्चन से शिवांगी, you're asking कि आपको एज अ करियर यू वांट टू चूज डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे, एंड इफ यू वांट टू चूज डिजिटल मार्केटिंग क्या स्किल सेट्स हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. So to answer this, Shivangi, definitely digital marketing is the current trend. आज के टाइम पे digital marketing is a very important and one of the best career to choose. The reason is digital marketing means the digital presence of any company. ठीक है, किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग, किसी भी कंपनी का प्रमोशन करना, किसी भी कंपनी के लिए लीड जनरेट करना, उसकी रैंकिंग बढ़ाना, SEO, SMO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, the entire Google AdWords, everything that all comes under digital marketing. तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो डेफिनेटली खत्म नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपनियां भी बढ़ेंगी, आने वाले टाइम पे कंपनीज, हर कंपनी को अपनी मार्केटिंग करवाने ही हैं. सो डेफिनेटली दिस इज अ गुड करियर टू चूज. इफ यू टॉक अबाउट द स्किल सेट्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. इस पे एक अलग से वेबिनार सेशन भी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को और क्लियर बताएंगे उसके बारे में, बट इनके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द SEO, इफ़ यू टॉक अबाउट द SMO, इफ़ यू टॉक अबाउट द गूगल एडवर्ड्स, सो हर चीज़ों इनकी स्किल सेट्स चाहिए इसमें. वो सीखने के लिए डेफिनेटली बहुत से ऐसे कोर्स प्रोवाइडर्स भी हैं ऑनलाइन जो प्रोवाइड कर रहे हैं. यू विल लर्न फ्रॉम देयर. बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं. सो स्किल्स बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. और if I talk about the trend, yes, ये बहुत अच्छा करियर के लिए है. It's a good option to choose. Okay, that's great, sir. Mhm. Sir, I Sir, have I one more have one more question. question. If I talk If I about talk the about the AI, AI, so so how is it how is it going to going to impact the impact the future? future? Like, इससे इससे really सबकी really सबकी jobs जाने jobs वाली जाने हैं? वाली हैं. No, So market में ये Market कितना में ये कितना impact impact करेगा? करेगा? right. अब बहुत से लोगों के अंदर एक ये मिसकंसेप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज कमिंग टू द मार्केट एंड इट गोना किल द मार्केट. आई मीन जॉब्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है. नो, इट्स नॉट. बेसिकली इट्स नॉट. AI इज देयर टू हेल्प यू. AI आपकी हेल्प के लिए है, ह्यूमन को, रिसोर्स को चेंज करने के लिए नहीं है. काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से आप लाइक बहुत सी चीज़ें ईजी हो गई हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हर कोई यूज़ कर रहा है आज के टाइम पे, हर ऑफिस में यूज़ होते हैं. बट अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कोई भी ऑफिस या कोई भी कैंपस जहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैट जीपीटी किसी को फायर कर दिया गया हो, या सिर्फ चैट जीपीटी से ही सारा काम हो रहा है. नो, ह्यूमन शुड बी देयर. With help of human, we are covering all the requirements. So definitely AI is a good option to choose, but AI से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है. I guess Nisha is the one who raised hand to ask some question. Nisha, you Nisha, can you can unmute unmute yourself yourself and ask and the ask the question. question. Hi Nisha, can you hear me? You can unmute and you can ask, otherwise you can type your question. I will be able to read it.
Okay, hi guys. Anupam, this is Desh. Hi. I have given the access to all of you for next 15 minutes. I have you can unmute yourself and you can ask the questions if you have any. And please, one by one. Yes, one by one. Raise your hand. Then only ask. Okay, so if anyone is having any question, please unmute yourself and then ask question. Hello. Yeah, hello. Yeah, hi sir. Saurabh this side. Hi, Saurabh. So I heard your like sir. So sir, I have just completed my Mm-hmm. and just wanted a suggestion from your side. Yes, please. So Hello. I didn't get your question actually. Saurabh, can you hear me? Hello. Indresh, can you hear me? Yes, sir, you are audible. Saurabh, I'm not getting your voice. I didn't get your question as well. So anyone is having any question related to career? Sir, I have voice is getting echoed. Okay, I think Anupam, I got his question. He is saying that sir, I have done my BCom and he belongs from I think Durgapur side, from East UP. So he's asking like I have done my BCom. So what exactly the next step I should do? Okay, so I understand. पहला सवाल तो यहाँ पे ये है कि जब आपने बीकॉम किया उससे पहले आपने क्या डिसाइड किया था और अभी बीकॉम करने के बाद आप क्या डिसाइड कर रहे हो बिकॉज आई विल बी नॉट द वन हु विल बी गिविंग यू आंसर फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन यू द स्वॉट एनालिसिस नो द मार्केट नो द इंडस्ट्री पहले एक बार रिसर्च कर लें क्या डिमांड में है उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करें कि व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट अलाउ यू टू गो एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको फिर से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि बीकॉम आपने कर लिया है डेफिनेटली यू हैव वन पैथ आप बीकॉम में अपना करियर बना सकते हैं दैट इज लाइक इन अकाउंटिंग और समथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग आप इस फील्ड में जा सकते हैं उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट आज के टाइम पे क्या है कि पीपल आर डूइंग बीटेक एंड दे आर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सो डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स करके क्या चीज़ें आप कर रहे हैं राइट Shivangi, can you unmute? Sorry, mute. Okay, so that's all, Saurabh. I mean, you need to decide कि आपको किस चीज़ों में काम करना है उन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं so that completely depends upon you. ठीक है? Any further question? Any other question that we have? Thanks, Anupam, for this. Yes, Shivangi have a couple of more questions. We are getting there. Shivangi is having any question? No, Shivangi not. Shivangi is getting the question on his WhatsApp. Oh, okay. And all right. we have one question before Shivangi attend that question. That is in group, chat group. Okay. So I can see it says, Harsh asked, YouTuber is a career option too. So is being a YouTuber going to be helpful and productive in future? And will it have scope in future, like in next 2 to 3 years? Okay. So Harsh, it depends. It totally depends what you want to be. If I talk about the YouTuber that you're asking कि YouTuber एक अच्छा career है या नहीं है, no doubt है. Because YouTube is again a part of digital marketing. I mean क्या है कि आप अगर एक YouTube expert होते हो, I'm not saying कि just एक video बनाया और डाल दिया. Again, pro and cons are everywhere. आप अगर कोई चीज़ में expertise अपने आप को show कर रहे हो, if you are good enough to बी अ यूट्यूबर जब आप बात कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं
what you're trying to do. Are you trying to be a blogger, or are you trying to be something, किसी चीज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को बताने जा रहे हो? यू आर गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट होस्टर. सो यूट्यूब के अंदर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं. डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, या आप सिर्फ गेम खेलने के लिए यूट्यूब को प्रेफर करते हो. तो इट डिपेंड्स. ठीक है. Again, if I talk about the scope in future in next to 2 to 3 years, yes, it is. YouTube का स्कोप है, डेफिनेटली है. अभी काफी AI में आएंगी चीजें जो YouTube को भी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन कमिंग नेक्स्ट 5 years. But again, YouTube should be there. Hopefully it clear your answer. Shivangi, do you have any other question? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a Sir, I have a question. question. Like Like students students को को क्या करना to चाहिए prepare to prepare themselves for the themselves job market, when they when they graduate? graduate? That is really an amazing, nice question. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं. जैसा अभी हमने काफ़ी सारे सेमिनार लिए हैं. अभी लास्ट सेमिनार आई वाज हैविंग इन ITS कॉलेज गाजियाबाद. इससे पहले मैंने अभी एक सेमिनार लिया था और उधर फरीदाबाद में DAV कॉलेज में. तो प्रॉब्लम इज कि लोग कोर्स तो कर रहे हैं, दे आर ऑप्टिंग द कोर्स लाइक एनी काइंड ऑफ कोर्स. BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बट उस कोर्स के साथ दे आर नॉट गेटिंग the actual requirement what actually a company is looking for. And as a result क्या हो रहा है कि when they are trying to jump into the market, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है. they are actually struggling with it. so इस तरीके से क्या होता है, if कई बार BBA, BCA, MCA, MBA, BTech, MTech इन सारे कोर्स को करने के साथ साथ इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बहुत सी ऐसी कंपनी है जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है. आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें, ये बहुत हेल्पफुल है. उस इंटर्नशिप से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको एक मौका मिलता है, यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द मार्केट. एंड वंस यू आर गेटिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट, आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. इट्स समथिंग लाइक कि आपने कोई एक रास्ता अगर एक बार ट्रेवल किया हुआ है तो दोबारा यू विल बी हैविंग अ कॉन्फिडेंस टू राइड. यू नो, आप उस पर दोबारा जब गाड़ी चलाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है. दिस इज सेम. तो इसलिए इंटर्नशिप इज रियली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर यू नीड टू आप उसको ज्वाइन करें. बहुत ज्यादा फायदा है उस चीज का. एंड दैट इज द ओनली वे आप मार्केट को समझ सकते हैं. सो काफी बार ऐसा होता है कि समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, काफी चीजें मिलते हैं, बट लोग उसको इधर उधर मजे करने में निकाल देते हैं. सो दैट्स समथिंग आई कैन सजेस्ट कि आप ट्राई टू ऑप्ट internship as much as you can. So there is one more question from Rahul. I have one question. Is certification required other than our bachelor degree if I want to make my career in media? Also, sir, I'm 23 years. How can I become an entrepreneur like you? Okay, Rahul, if I talk about आज के time पे to start a business, to be a entrepreneur is like बहुत आई मीन एक रियरली मैं क्वेश्चन एक पोल करवाया था मैंने अभी, उसमें मैंने पाया था कि अप्रॉक्स 70% पीपल हैं जो अभी के टाइम पे एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि दे हैव देयर ओन ऑफिस, उनका खुद का ऑफिस हो. तो ये सारी चीज़ें हैं. यूर 23 ईयर्स एंड द कमाल का चेंज आज के टाइम पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जब हमने पढ़ाई की थी 23 ईयर्स में, उस टाइम पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. बट आज के जनरेशन का I really feel proud and I really feel कि ये कितना ज़्यादा चेंज है. At the age of 21, at the age of 23 years, हमारी जनरेशन, हमारे आज के स्टूडेंट्स, they are actually planning big. वो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, वो जॉब लेने की बजाय जॉब देने की सोच रहे हैं. तो दिस इज बहुत ही अच्छा चेंज है ये हमारे इंडिया के अंदर. एंड दैट इज द रीजन कि हमारा इंडिया की GDP इतनी ऊपर जा रही है. एंड द गवर्नमेंट दैट वी हैव इज रियली सपोर्टिव फॉर नाउ. नाउ योर क्वेश्चन is certification required other than our bachelor degree? See, degree एक अलग चीज है. If you're joining somewhere, आप एक BTech कर रहे हो, आप एक BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, whatever you're doing, at the end of your course you will be getting one degree. That is degree. वो आपको सिर्फ एक piece of paper मिल रहा है जो आपको ये बता रहा है कि आपने ये डिग्री करी है. उस डिग्री से ना तो आपकी जॉब की गारंटी है और ना ही आपको ऐसी गारंटी है कि नाउ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. That is just a degree जो आपको मिल चुका है. अब you are BTech pass out, you are BBA pass out,
you're MBA pass out, ठीक है? Now your question is certification. Definitely certification आपकी value रखती है because it will make your resume strong. If you're doing any kind of certification, that will make your resume strong. But when we talk about certification, उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर skills होने चाहिए. तो अपने अंदर skills develop करें. For become an entrepreneur, start listening, start reading books. आप काफी सारे आज के टाइम पे YouTube is the best platform. Learn about it. सीखो कि लोग कैसे इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं. Learn about angel investment. लर्न टू नो अबाउट द लेआउट, किस तरीके से हम लेआउट बनाए, कौन सा बिजनेस मॉडल होना चाहिए. तो ये काफी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा. टाइम कम है, क्वेश्चंस अब आने शुरू हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. समृद्धि इज हैविंग क्वेश्चन. हे सर, आई एम एन MBA स्टूडेंट एंड आई वांटेड टू चूज HR एज माय करियर, but one of my senior asked me not to take it because there are many HR software available that will reduce job requirement in same. समृद्धि, दिस इज द सेम आंसर. अभी के टाइम पे बहुत से लोग आपको ये गाइड करेंगे कि AI is coming to the market and it will actually impact human resource. No, it's not. If you talk about HR के ऊपर हमारे आई गेस 2 या 3 सेशन हैं आने वाले इस वेबिनार सीरीज में. They are really senior person and they will be giving you the best answer on it. But from my side, no, it's not like that. HR is again a good career for now. And as you already have done MBA, so definitely आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था. That's why you have chosen that. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि HR के सॉफ्टवेयर आ जाने से HR की जॉब कम हो जाएगी. If you have interest in HR, human resource is the one of the best platform, one of the best career to choose because ह्यूमन रिसोर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाला है. जब तक कंपनी रहेगी ये रहेगा. The question is, sir, I have a question. In today's market, we can see every company is looking for experienced employee. So, sir, as fresher, what can we do where if we don't have experience? Again, मयूरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे. यू आर अ फ्रेशर, कभी भी ये मत सोचो कि आप फ्रेशर हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी. बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे, इफ यू गो ऑन लिंक्डइन एंड जस्ट टाइप इन द सर्च बार जो आपका है, अगर आप वहां पे जाके सर्च करो जॉब्स हैशटैग फ्रेशर्स, आपको बहुत से ऑप्शंस दिखेंगे उसमें जॉब्स के. जॉब्स है मार्केट में, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फ्रेशर्स हैं उनको अभी अच्छे से जॉब ढूंढना नहीं आ रहा है. इफ दे आर एबल टू फाइंड अ जॉब, दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर जॉब. उनको इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं है, दे लैग विथ इंटरव्यू, दे डोंट नो हाउ टू द आर्ट ऑफ इंटरव्यू. देयर इज अ सेशन आर्ट ऑफ इंटरव्यू, आपको वो समझना पड़ेगा. और रिज्यूमे मेकिंग इज वन ऑफ द पार्ट, क्योंकि 1000 ऑफ रिज्यूम्स आते हैं ईमेल पे, उसमें से आपका रिज्यूमे कैसे पिक होगा. This is the again next session that we will be taking, resume making and art of interview. अगर if you are having that, there are options. बहुत से तरीके हैं रिज्यूमे सॉरी फ्रेशर्स को मार्केट में जॉब ढूंढने के. 10 number of तरीके जो मैं आपको बताऊंगा. Maybe the other speaker who will be coming on the next session, he will be explaining you like networking in the market, job fair in the market, LinkedIn market, ऐसे कई सारे हैं. We will be explaining you further. राहुल ने पूछा है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आई एम रियली अप्रिशिएट योर टाइम सर, कैन आई गेट योर नंबर. राहुल, आई गेस हमने आपको स्लाइड पे अपना नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है. in the last slide that I shown you, there was email and there was number. You can reach on that number anytime. You can drop an email anytime. Rest on LinkedIn, you can go and follow Whiteboard Foundation and Deltron Technologies. So you can text us anytime. आप उसके थ्रू हमें कभी भी रीच कर सकते हो. बबीता का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. बबीता, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. इफ यू आर स्टडिंग राइट नाउ, आप अगर BBA MBA कर रहे हो और BBA MBA के साथ, आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ BBA MBA, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो आप कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग एनी प्लेटफॉर्म, अगर किसी भी कंपनी में आपको ये मौका मिलता है कि आप वहां से इंटर्नशिप करें. इंटर्नशिप स्टैंड फॉर, कई बार इंटर्नशिप पेड होती है, कई बार अनपेड होती है, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट, डिपेंड. इफ यू आर गेटिंग एनी ऑप्शन, अगर आपको 2000 रुपए दे के भी कहीं बैठने का मौका मिल रहा है, या 5000 दे के भी आपको बैठने का मौका मिल रहा है फॉर 1 month 2 month, गो देयर, लर्न समथिंग. आपको बहुत फायदा होगा वहां. यू विल लर्न, यू विल थिंक, यू विल सी कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम कर रही है, इंडस्ट्री में किस चीजों की डिमांड आ रही है. द कंपनी हायरार्की यू विल अंडरस्टैंड, मैनेजर से कैसे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज में चेंज. सो यू विल सी द entire change in you. So internship is really, really important and it's really useful. So Isha, do you have any question?
You have raised Yeah, your sir, hand. I Yeah, do sir, I have do one have one question. Okay, question. Please. Yeah. Sir, so Sir, being so a being a professional, I professional, just I want just to want know, to know, like, how like, can how we can manage we our manage other our other studies? studies? Like, Like, obviously, we obviously, we cannot cannot stop after stop our after our colleges, so we colleges, so also we want to also learn want to learn something new, something like new, like analytics or analytics something or like something that. like that. So, how So, can we how can manage we that? manage that? Okay, that completely depends. When you talk about learning, learning के दो पार्ट होते हैं. First, are you trying to learn something for your career? Second, are you trying to learn something for just inner self? कि आपको इस चीज का knowledge हो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो. Definitely there are multiple ways. There are multiple ways. YouTube है, बहुत सी चीजें हैं जहां से आप कर सकते हो. आज के टाइम पे ट्रेंड इज ऑनलाइन स्टडी. ऑनलाइन स्टडी ने बहुत ही अच्छा मार्केट में एक प्लेटफॉर्म दिया है. यू कैन लर्न एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. मैंने पहले ही बोला दो टाइप है. अगर आपको करियर से रिलेटेड पढ़ाई करनी है उसका एक डिफरेंट तरीका है. अगर आपको इनर सेल्फ के लिए पढ़ना है कि नहीं मुझे इस चीज का नॉलेज हो, जैसे आई पर्सनली मैं बात करूं, मैं बहुत सी कोर्स मतलब ऐसे भी टाइम टू टाइम करता रहता हूं जस्ट टू नो कि मेरे पास इस चीज का नॉलेज हो, तो यू कैन ऑप्ट द अपॉर्चुनिटी. ठीक Okay, है. sir. ओके सर. सैफ अली खान, हाय सर, हाउ कैन आई, I'm sorry. I have one question from Saif Ali Khan. Hi sir, how can I improve my online presence? Saif, do you have your business or what? Can Saif Ali Khan, can you hear me? What kind of online presence that you're talking about? आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो मुझसे. ओके, यू हैव बिजनेस. ठीक है सैफ, इफ यू हैव अ बिजनेस आप उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं बाय डिजिटल मार्केटिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के काफी प्लेटफॉर्म हैं. अगेन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसईओ के थ्रू उसकी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं. सो बहुत से तरीके हैं ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने का. इज द ओनली ऑप्शन इज डिजिटल मार्केटिंग. आपको उससे ऑप्ट करना पड़ेगा. डीएस गेस्ट, hello sir, what soft skills do you recommend for a better corporate performance? DS, that is the question, but ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड देन आपका इंटरेस्ट क्या है आने वाले टाइम पे. आप किस फील्ड में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्किल्स की मैं बात करूं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड हर डोमेन में अलग अलग. इफ़ यू वांट टू ऑप्ट सॉफ्टवेयर, that's different. If you want to opt management, that's different. इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट कि आपको कौन से सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, इन जनरल मैं दो तीन पॉइंट्स ही आपको बोल सकता हूँ. द फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन, वो आपका प्राइमरी है जो चाहिए ही चाहिए. सेकेंड इज द कॉन्फिडेंस, जो आपके अंदर चाहिए ही चाहिए. इफ यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस, इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, यू आर गुड टू गो इन द मार्केट. उसके अंदर कुछ टेक्निकल नॉलेज आप लेके अगर पहुंचोगे तो यू विल बी सेलेक्टिंग इन द इंटरव्यू. ठीक है. So Shah Rukh Khan. Oh, nice. Shah Rukh is also on the call. So, what digital marketing skills are in demand? See, digital marketing skills कभी भी डिमांड में नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग डिमांड में है. उसके अकॉर्डिंग स्किल्स जो आप डेवलप करोगे, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा. अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं जो सबसे ज्यादा डिमांड में आता है, आप सोचो कोई भी कंपनी है, इफ एनी कंपनी इन इंडिया और मे बी अब्रॉड, इंडिया से बाहर भी जो कंपनी है, उनको अपनी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उन्हें दो चीजें चाहिए होती है. एक तो मेरी कंपनी का प्रेजेंस, जो कि दुनिया देखे कि मैं क्या हूं. दूसरा इज द लीड. लीड मीन्स बिजनेस. सो बेसिकली ये दो चीजें हैं जिन पे डिजिटल मार्केटिंग टिकी हुई है. एक, हर किसी को, हर क्लाइंट को क्लाइंट चाहिए सो दे कैन रन द बिजनेस, उनका बिजनेस चल पाए. सेकंड इज द ऑनलाइन प्रेजेंस. तो आपको इसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा होना चाहिए, गूगल एडवर्ड्स आने चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपके अंदर आना चाहिए. एसईओ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आपको क्लाइंट एसईओ भी मांग सकता है. अब एसईओ के अंदर आता है बैक लिंक्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा. इट्स लॉन्ग कोर्स. डिजिटल मार्केटिंग पे भी हमारा एक अलग से सेशन है, so you will try to attend that. Nitin Pal is the one who is taking, I guess, on digital marketing. It's the third webinar, I guess. You will be getting the email from our team. So anyone is having any question now? All right, so I guess we are good to go.
that's all for today. And thank you. Harsh, do you have any question? You raise your hand. Okay. So thank you very much everyone to join this session. Isha, that's all from my end. Thank you so much for hosting me. And if you have any notes, so you can share it with the team. And thank you from my end. Thank you everyone. Sure, sir. This,